Maddie, welcome Sir, thank you, sir. to our show. I'll call you Maddie because, I've never known you by any other name. Right, Maddie, because we've given your introduction as a biker, and one can understand your love for it and how often you go out. A lot of the casualties that are happening are almost, what are the percentage? About 30%. 30%. Yeah, 30%. They are because of, bikers. What do you think, A, is the reason why they happen? And what are the precautions that you feel perhaps we can take or you can guide us into that? Well, thank you, sir. I think I'm going to jump right into it because there are so many people who have so much to say. One of the rules that I heard very earlier on in my life as a biker, and I'd like to share that with all bikers, past, present, and future, is that when you're riding a bike, the first thing that you have to know is that everything and everybody on the road is out to get you. It's not, you don't predict the trajectory of any vehicle or the fact that the dog will not cross you or that car will not hit you or that is too far away. When you're riding a bike, the first thing you have to know is that everything is out to target you. If you ride with that attitude, more often than not, you'll have a much more safer ride while you're using the two-wheeler. The second thing is, when you ride a bike, on a two-wheeler on an empty highway, the euphoria is almost meditative. It's just, it's amazing how you're with yourself all the time. But more importantly, you get a lot of time to think about a lot of things. Yeah. But when you're a youngster and you feel the power of the vehicle, as a first-time rider, you tend to try to push the limits all the time. And unfortunately, among the 30% that you talked about, a large portion of that are youngsters. And that is the most, that's the saddest part. So I think to inculcate a sense of responsibility और उनको मतलब डराना भी मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है ताकि लोग सिर्फ उनकी गलतियों की वजह से नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों की वजह से भी अपना जान खो देते हैं, which is not acceptable. Well, actually, Maddie, you actually answered most of what we were about to ask next. What are the kind of precautions that you need to take? Our roads have improved, thanks to the Honorable Minister. And as you rightly said, the impulse is that अरे खुली सड़क है चलो इस पे हम छोड़ देंगे अपना पूरा चलेगा गाड़ी. But the very important point that you brought up in the initial stages of your talk was that जब भी आप निकलेंगे बाहर ये आपको मान लेना चाहिए कि भैया सब लोग जो है लगे हैं आपके पीछे जी. सबसे आप होशियार रहिए जी. कभी भी कोई क्रॉस कर जाएगा, बैरियर कूद करके आ जाएगा, ये बगल वाला जो है लेन चेंज करने का तो ये सामने से एकदम काट देगा आपको. आपके पीछे सारी चीज़ें होती हैं जी. It's a very difficult kind of psychology to live with, but I think that अगर आपको दुर्घटना से बचना है तो ये आपको सोच के निकलना पड़ेगा कि भैया उधर से गाड़ी आ रही है, बहुत दूर है और ये बैरियर के उस तरफ है. मान लीजिए उसका ब्रेक खराब हो गया और बैरियर तोड़ करके हमारी तरफ आ गया तो हमें क्या करना चाहिए, हम पहले से सोच के रखें. अमित जी, इससे सही मतलब मैं कह रहा हूँ हर एक बाइकर ऐसा ही सोचता है. सब लोग सोचते हैं यार आप बड़े रिग्रेसिव किस्म के आदमी हैं, दुर्घटनाओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या करें. कई बार अखबार में देखते हैं, पढ़ते हैं, अचानक कोई सामने से निकल जाएगा तो कहते हैं कि जो तीसरी लेन है, फर्स्ट लेन जो है वो खुली है, उस पर जाना चाहिए, उस पर आपको थोड़ा सा तेज़ी से निकल सकते हैं. तो मैं उधर जाता ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर है वो झाड़ी में से कोई निकलेगा, वो क्या करेंगे हम. तो हम कहते भैया बीच वाला ही ठीक है, 10 मिनट थोड़ी सी देर पहुँचेंगे. सर ये एक और बात है सर कि 5-10 मिनट लेट हो जाएंगे तो क्या होगा सर, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका चेहरा और खूबसूरत हो जाएगा, क्या होगा. 10-5 मिनट लेट होंगे ना, लेकिन वही 10-5 मिनट के लिए वो तेज भगा देगा गाड़ी. सो दिस आई लव व्हाट यू हैव सेड कि सब लोग जो है निकले हुए हैं जी कि कैसे इसको ठोकें. बट दैट इज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी. तो अगर आप निकले हैं सड़क पे ये सोच ही निकलिए कि साइकिल वाला जो है वो कभी भी मुड़ जाएगा जी. ये जो झाड़ी से कोई भी निकलेगा, अचानक कुत्ता आ जाएगा सामने, पेड़ के ऊपर जो बिल्ली है वो आपके ऊपर छलांग मारेगा, कबूतर आपके सामने आ जाएगा, ये सारी चीजें. अनदर थिंग फॉर पेरेंट्स, जो सड़क पे निकलते हैं तो बच्चे को सड़क की तरफ रखते हैं. सर ये गलत बात है, बहुत गलत बात है.
अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश कोई एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले उसको खतरा है. दे शुड वॉक विद द चाइल्ड टुवर्ड्स द पेवमेंट और द अदर साइड ऑफ द रोड एंड देन वी वॉक. तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पता नहीं कब बच्चा हाथ चुड़ा करके आ जाए सामने. जी. ये सारी सोचना पड़ता है. लोग कहेंगे सर आप पागल हैं, इतना कौन सोचता है. गाड़ी चलाइए. Now, before we take the conversation forward with the three gentlemen, इन्होंने भी बाइक में काफ़ी स्टंट्स किए हैं, फिल्मों में किए हैं, रियल लाइफ में तो मैं नहीं कहूँगा, पर शोले अभी भी हमें जयवीरू याद है. But we'll quickly go across to some biking groups who are joining us from different cities across the country. Okay. So there are bikes, e-bikes, super bikes. We'll come to that question in a bit. But from Chandigarh, we have the motorcyclists. It's an all-women's group that trains other women how to ride bikes. So there they are. देख लीजिए. And there from Pune, we have the Pune Wanderers Biking Brotherhood that has over 100 members comprising both men and women. So first, let's go to Pune. Umesh Sharma is, okay, first let's go to Chandigarh. Umesh Sharma joining us from Chandigarh. जी उमेश, वहाँ बारिश होती दिख रही है जी. पुणे में बारिश. देखिए बारिश यहाँ पर चंडीगढ़ जी शुरू हो चुकी है और बाइकर्स का ग्रुप रेडी है यहाँ पर. मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये पूरा जो बाइकर्स का ग्रुप आप देखेंगे यहाँ पर तैयार है और बारिश हालांकि पहले नहीं थी लेकिन अभी शुरू हुई है. सवाल के सिलसिला शुरू करेंगे सबसे पहले क्योंकि बारिश में लोग वेट कर रहे थे. देखिए एक बड़ा सवाल सबसे पहले है कि जब आप रोड पर चल रहे हैं, एक कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा चिंता का विषय जो कहते हैं वो क्या हो सकता है कि अगर ये कहते हैं कि जानवर आ गया या जय वॉकिंग की हम बात करें, लेकिन सबसे बड़ा चिंता का फैक्टर क्या है आप लोगों के लिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा चिंता का विषय इस टाइम है लेन चेंज. बिना इंडिकेटर काफ़ी ड्राइवर्स जो हैं वो अपनी लेन चेंज करते हैं, जिससे बाइकर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है प्रॉपर ड्राइव करना. दूसरा डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं वो लोग. तो मुझे तो यही सबसे बड़ा पॉइंट लग रहा है. और एक हाईवे पे अचानक से लोग जब रोड क्रॉस करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन. मेरे लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम. आपको क्या लगता है? इन्होंने बताया कि लेन चेंज है. मेरी अभी तक की जर्नी में जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है वो सबसे ज्यादा साइकिलिस्ट से आई है. सडनली एकदम से बाइक के बिल्कुल सामने से निकलते हैं, क्रॉस करते हैं, पता नहीं होता किधर जाना है. वो तो निकल जाते हैं लेकिन हमें इमीडिएटली ब्रेक लगाकर पीछे पूरा ट्रैफिक, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है. अच्छा, तो आपके लिए चिंता का विषय सबसे बड़ा क्या है अगर मैं बात करूं? सर मेरे लिए तो ये है कि जैसे बारिश शुरू हो गई है, आप अभी का जो मौसम है ठीक है, कई जगह सड़क बहुत अच्छी है पर कई जगह पे आप बहुत ऑल्ट देखते हैं सडनली वो एकदम आते हो और बाइक को कंट्रोल करना वो काफ़ी मुश्किल आती है. और जैसे यू टर्न लेके कई बार एकदम से लड़के आगे, अगर उनको लगे कि ये फीमेल कोई जा रही है, उनको पता चल जाए तो वो दे आर ट्राई टू चीट अस कि मतलब उनको डराते हैं. कई बार इस तरह की हमारे साथ शरारत करते हैं वो लोग. तो ये सारी चीज़ें जो है इनका कुछ ना कुछ होना चाहिए या उनकी एक प्रॉपर लेन होनी चाहिए बाइक के लिए ताकि हम उसी से फॉलो कर सकें उस रोड को. सभी का अपना अपना देखिए ओपिनियन है. आप यंग बाइकर्स हैं, क्या लग रहा है आपको सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर क्या है चिंता का विषय जब आप सड़क पे होते हैं, आप लोग भी और बाकियों के लिए भी? सर देखो सारे के सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट हैं. पॉट होल्स दे हैव टू बी फिल्ड, दे हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, उनका भी ख्याल रखना है. एंड देन लेफ्ट और राइट से क्रॉस करना है. लाइक मेरे पीछे अगर कोई और बाइकर है या कोई और गाड़ी वाला है, इवन जो रेडी रिक्शा लेके भी चलते हैं उनको भी देखना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स जो गाय वगैरह है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, मेरा खुद का मेजर एक्सीडेंट हुआ था. आई विल ट्राई टू शो यू. यहाँ पर ये आपको यहाँ पर दिखेगा ये वाला, ये मुझे गाय की वजह से लगा था क्योंकि मेरा हेलमेट अच्छा था, इसकी वजह से मैं बच गई. हेलमेट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी की, वो भी आप अच्छा पहनो. एंड देन यस, गाय का ख्याल, जानवरों का ख्याल. जो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन से आते हैं जो उनकी होती भी नहीं और गलत यू टर्न लेना वो लोग करते हैं, कॉमनली करते हैं. एंड देन कमिंग विद योर बाइक्स एंड रिक्शा जो रेडी होते हैं फुल करके उनको लोड करके ऑपोजिट डायरेक्शन से आते हैं. एंड देन अगेन आई विल से कि डिस्टेंस मेंटेन करो. कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, ये सारी चीज़ें टेक केयर करने वाली हैं. एवरीबडी हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नॉट जस्ट अस. सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि जानवरों का एक बड़ा इशू है और जो लेन का, आपके लिए क्या लगता है? सर इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हीकल्स मुझे लगता है हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने रूल्स फॉलो करना, ट्रैफिक रूल्स. आई वुड रिक्वेस्ट पंजाब ट्रैफिक पुलिस, चंडीगढ़ का तो फिर भी थोड़ा कंट्रोल में है बट पंजाब में तो बहुत ही बुरा हाल है. नोबडी फॉलोज लाइट्स, कोई लाइट पे रुकता नहीं है. सो आई थिंक वो किसी का भी मन करता है कहीं से भी निकल जाता है. सो अगर हम अपनी लेन में चल रहे हैं, एवरीबडी शुड फॉलो अ लेन. जैसे फॉरेन में होता है, सब लोग अब्रॉड भागते हैं, बट इंडिया में अगर वही सिस्टम फॉलो करें तो आई थिंक